السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا میرے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج کا ہمارا یہ جو ویڈیو ہے NMMS ایگزام سیریز سے جڑا ہوا ہے۔ تو پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے مختلف قسم کے اعداد جیسے مخلوط اعداد، منفرد اعداد، مثلثی اعداد، فیصد و رسی ثلاثہ وغیرہ پر ہم نے اس ویڈیو میں روشنی ڈالی تھی۔ تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے جی میٹ یعنی جنرل مینٹل ایبیلٹی سے جڑا ہوا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اعداد کا مربع، اس کے جذر المربع اور اسی طرح سے اعداد کا مکعب اور جذر المکعب، تو اس پر ہم کیا ہے آج معلومات کو حاصل کریں گے۔ ساتھ ہی یہاں پر ورک شیٹ بھی اس ویڈیو میں پیش کی جائے گی کہ کس طرح سے ہمیں اعداد کے مربع اور مکعب پر ورک شیٹ کو حل کرنا ہے۔ اسکوائر اینڈ کیوب آف نمبرز وتھ ورک شیٹ، تو یہاں پر اعداد کا اسکوائر یعنی اس کا مربع اور مکعب سے متعلق اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ اور آپ کو یہاں پر آگے جو ویڈیو کا ڈسکرپشن ہوگا وہاں پر ورک شیٹ کا لنک بھی دیا جائے گا، وہاں سے جا کر کے آپ اس ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو وقت کو مزید ضائع نہ کرتے ہوئے چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اعداد کا مربع، اعداد کا مربع اسکوائر آف اے نمبر، اعداد کا مربع اسکوائر آف اے نمبر سے متعلق کیا ہے معلومات کو حاصل کریں گے۔ تو یہ ہم باقاعدہ ہمیں 8ویں جماعت میں اس سے متعلق ایک سبق ہے مربع اور جذر المربع، اسی طرح سے مکعب اور جذر المکعب، تو اسی کا ہم اعادہ کرتے ہوئے یہاں پر آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اعداد کا مربع کسے کہتے ہیں؟ تو کسی عدد کو اسی عدد سے ضرب دیا جاتا ہے، کسی عدد کو اسی عدد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حاصل ضرب کیا ہے پر 9 9 81، تو کسی عدد کو اسی عدد سے ضرب دینے پر جو حاصل ضرب ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس عدد کا مربع۔ تو اس طرح سے یہاں پر 9 کا مربع کتنا ہے یہاں پر 81، تو 9 کی قوت 2، اس کا مطلب کیا ہے 9 کو 2 مرتبہ ضرب دیا گیا، تو 9 9 81، 9 کا مربع 81۔ اسی طرح سے 11 کا مربع، 11 کی قوت 2 یعنی 11 کا مربع، تو 11 کو 2 مرتبہ ضرب کرنا ہے، 11 ضرب 11 تو یہ کتنا ہوگا 121، تو اس طرح سے 11 کا مربع یہاں پر کیا ہے 121 ہے۔ تو ہم اعداد کا اس طرح سے مربع معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اعداد کا جو مربع معلوم کرنے کا ایک طریقہ جو ہم نے سبق میں پڑھا ہے اس پر بھی ہم نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو 46 ہے، تو 46 کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 40 جمع 6، 40 کا مربع معلوم کرنا ہے یعنی 40 جمع 6 کا مربع، تو 40 جمع 6 ہول سکوائر اگر ہے تو 40 جمع 6 کو 2 مرتبہ ضرب کرنا ہے، 40 جمع 6 ضرب 40 جمع 6، تو یہاں پر 40 لے کر کے ہم پوری بریکٹ کو ضرب کریں گے، 40 جمع 6، اسی طرح سے جمع 6 لے کر کے پوری بریکٹ کو ضرب کریں گے، تو یہاں پر کتنا ہوگا 4 4 16 اور یہ 2 صفر، 4 6 24، یہ 240 جمع 6 4 24 اور یہ صفر 240 اور یہ 6 6 36۔ اگر ہم یہ تمام اعداد کو جمع کریں گے تو یہ کتنا ہے 1600 اور یہ 240 اور 240 2 مرتبہ ہے اور یہ 36، تو یہ 6 4 4 8 1 3 11 6 1 4 10 اور یہ 11 اور یہ 2، تو 2116۔ تو 46 کا مربع کتنا ہے یہاں پر؟ 46 کا مربع 2116۔ تو اس طرح سے یہاں پر اعداد کا مربع کس طرح سے معلوم کیا جاتا ہے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی ہم اعداد کا مربع معلوم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر 9 کا مربع کتنا ہے یہاں پر 81 ہے، یہ 9 کا کیا ہے
मुरब्बा है। अब यहाँ पर 981 का क्या होता है, तो यहाँ पर 9 जो है 81 का क्या है, ये जज़रुल मुरब्बा। ये क्या है, जज़रुल मुरब्बा, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जज़रुल मुरब्बा। तो अब ये जज़रुल मुरब्बा किस तरह से मालूम किया जाता है, तो अब हम यहाँ पर वही अदद लेंगे, 2000 एक मुरब्बा अदद को लेंगे 2116। तो इसको हम मुफरिद अज्जा ज़रबी के तरीके से इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे। तो यहाँ पर ये किस तरह से कट होगा, 2 10 20, एक बचा यहाँ पर 2 5 10 और एक बचा 2 8 16। ये फिर 2 से कट होगा, 2 5 10 और यहाँ पर 2 2 4 2 9 18। ये 2 से तो नहीं कट होगा, 529, और 3 से भी नहीं कट होगा क्योंकि हिंसों का मजमुआ यहाँ पर कितना है, 16 है। तो ये डायरेक्ट जो है 23 से कट होगा, 23 2 46 और यहाँ पर ये 6 बचेंगे, तो 23 3 69। नेक्स्ट जो है 23 1 23। तो यहाँ पर 2116 के जो अज्जाए ज़रबी यहाँ पर हमें हासिल हो रहे हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 23 ज़रब 23 ज़रब 23। तो ये मुफरिद अज्जाए ज़रबी हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर जोड़ी की शक्ल में लिखेंगे, अब मज़ीद इसको हम हल करेंगे, तो ये 2 की कुव्वत 2 ज़रब 23 की कुव्वत 2। इसको हम जो कुव्वत नुमा दोनों का सेम है तो उसको हम मुश्तरक तौर पर बाहर लेंगे, 2 ज़रब 23 की कुव्वत 2। अब यहाँ पर इसका जज़रुल मुरब्बा हमें मालूम करना है। 2116 मुरब्बा अदद है तो उसका जज़रुल मुरब्बा यहाँ पर कितना होगा, ये कुव्वत नुमा चली जाएगी जब हम यहाँ पर जज़रुल मुरब्बा लेते हैं, तो ये कितना होगा, 2 ज़रब 23, तो 23 2 कितना हुआ यहाँ पर 46। तो इस तरह से यहाँ पर अयदाद का मुरब्बा और उसका जज़रुल मुरब्बा किस तरह से मालूम किया जाता है, हमने यहाँ पर एक मिसाल लेकर के देखा है। तो ये तमाम चीज़ें हम सबक में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अयदाद का मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा मालूम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या है, अयदाद के मुकब और जज़रुल मुकब, मुकब और जज़रुल मुकब के बारे में देखेंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो किस तरह से अयदाद का मुकब और जज़रुल मुकब मालूम किया जाता है, इसको भी हम उस पर भी रोशनी डालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मुकब किसे कहते हैं, किसी अदद का मुकब क्या होता है, अगर हम एक अदद ले रहे हैं 5, अब उसी अदद को हम क्या है 3 मरतबा ज़रब दे रहे हैं, एक अदद ले करके उसी अदद से उसको 3 मरतबा ज़रब दे रहे हैं, तो जो हासिल ज़रब होगा यानी 5 5 25 25 5 125। तो यहाँ पर हमने कौन सा अदद लिया, 5 लिया, 5 को 3 मरतबा ज़रब दिया, तो जो हासिल ज़रब है वो इस अदद का क्या है, मुकब है, यानी 5 का मुकब कितना है 125। तो मुकब जो है ऊपर कुव्वत 3 होती है, इसको हम क्या है मुकब, या 5 क्यूब इसको पढ़ते हैं, या 5 की कुव्वत 3 पढ़ते हैं, या 5 का मुकब। तो 5 का मुकब यहाँ पर कितना है 125। 5 का मुकब यानी 5 को 3 मरतबा ज़रब करना, तो 5 5 25 25 5 125। इसी तरह से 10 ले रहे हैं, तो 10 का मुकब यानी 10 को 3 मरतबा ज़रब करना है, तो 10 ज़रब 10 100 100 10 1000। तो इस तरह से यहाँ पर अयदाद का मुकब मालूम किया जाता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखना है, तो 5 का मुकब, 5 का मुकब कितना है 125। ये 5 का मुकब। अब यहाँ पर 5 25 का यहाँ पर क्या है, तो ये क्या है इसका जज़रुल मुकब, इसको कहते हैं जज़रुल मुकब या क्यूब रूट। 5 का मुकब
125 और 125 का जज़रुल मुकब क्या है 5। ठीक है, तो अब जज़रुल मुकब किस तरह से मालूम किया जाता है, एक मिसाल लेकर के हम समझेंगे। तो यहाँ पर एक मैं अदद लिख रहा हूँ 10,648। ये एक कामिल मुकब अदद है या एक मुकब अदद है। इसको मुकब अदद भी कहते हैं और कामिल मुकब अदद कहते हैं। अब इसका जो मैं जज़रुल मुकब यहाँ पर मालूम करूंगा वो मुफरिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से। तो यहाँ पर अकाई के मुकाम पर जुफ्त अदद है, तो ये 2 से कट होगा, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। अब नेक्स्ट मजीद ये 2 से कट होगा, 2 2 4, 1 बचेंगे, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4। तो अब ये मजीद 2 से कट होगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। तो अब ये 2 से भी नहीं तकसीम हो रहा है, यहाँ पर 3 से भी नहीं तकसीम होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट 11 से तकसीम होगा। तो ये 11 1 11, 2 बचेंगे, 11 2 22 और 1 बचा, 11 1 11। तो ये 11 1 11, 1 बचा, 11 1 11 और इसी तरह से ये 11 1 11। तो 10,648 के जो मुफरिद अज्जाए ज़रबी हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 11 ज़रब 11 ज़रब 11। तो यहाँ पर 2 जो अज्जा ज़रबी है वो 3 मरतबा आ रहा है, इसी तरह से 11 भी 3 मरतबा आ रहा है। तो अगर अदद के यहाँ पर जो अज्जा ज़रबी हैं वो 3 का ग्रुप नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो कामिल मुकब अदद नहीं होगा। तो यहाँ पर हर जुज़्वे ज़रबी यहाँ पर कितनी मरतबा आना ज़रूरी है, 3 मरतबा आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 2 भी 3 मरतबा आ रहा है और 11 भी 3 मरतबा आ रहा है। तो इससे साबित होता है कि ये कामिल मुकब अदद है। तो अब ये कितना होगा, 2 की कुव्वत 3 ज़रब 11 की कुव्वत 3। एक जैसा है तो इसको हम मुश्तरिक के तौर पर बाहर लेंगे, तो 2 ज़रब 11 ब्रैकेट की कुव्वत 3। तो अब हम यहाँ पर इसका जज़रुल मुकब लेंगे, तो 10,648 का जज़रुल मुकब, ये जज़रुल मुकब की अलामत है। तो यहाँ पर जब जज़रुल मुकब की अलामत आती है तो एक कुव्वत नुमा चली जाती है। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 2 ज़रब 11, तो 11 2 22। तो 10,648 का जो जज़रुल मुकब है 22 है। तो इस तरह से हम आयदाद का मुकब और उसका जज़रुल मुकब किस तरह से मालूम करते हैं, हमने एक मिसाल लेकर के यहाँ पर देखा। तो ये तमाम बाकायदा 8वीं जमात में इसका एक एक अलग अलग सबक मौजूद है, तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट आपके सामने मौजूद है, मुरब्बा जज़रुल मुरब्बा, आयदाद का मुरब्बा दिया गया है और उनका जज़रुल मुरब्बा, और इसी तरह से यहाँ पर आयदाद का मुकब और उनका जज़रुल मुकब। तो यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक आयदाद हैं और उनके मुरब्बे यहाँ पर दिए गए हैं, और इसी तरह से यहाँ पर उन्हीं जो मुरब्बा आयदाद हैं उनका जज़रुल मुरब्बा भी यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर 20 तक आयदाद का मुकब और उनका जज़रुल मुकब दिया गया है। जब हम NMS एग्जाम की बात करते हैं तो आपको कम से कम 30 तक आयदाद के मुरब्बे और कम से कम 20 तक आयदाद का मुकब आपको याद करना है। तो ये चार्ट आपको हेल्प होगा। चार्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां जाकर के आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जो चार्ट है उसमें 30 तक आयदाद हैं और उनके मुरब्बे दिए गए हैं और 30 तक आयदाद के मुकब भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये चार्ट काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमें आयदाद के मुरब्बे और मुकब को याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम क्या है, इससे जुड़ी एक वर्कशीट को देखते हैं। तो यहाँ पर NMS एग्जाम GMAT वर्कशीट, तो यहाँ पर 0 से लेकर 15 तक आयदाद हैं। जो कॉलम है, जो सुतून है, यहाँ पर 0 से लेकर 15 तक आयदाद मौजूद हैं। और यहाँ पर जो सफ है, जो रो है, यहाँ पर n स्क्वायर है, यानी मुरब्बा
अदद का मुकब n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 3 n क्यूब प्लस 1 n क्यूब प्लस 2 n क्यूब प्लस 3 n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस n क्यूब माइनस 3 n क्यूब प्लस n स्क्वायर और इसी तरह से n क्यूब माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पर एक एक अदद हम n के तौर पर लेंगे और उसका मुरब्बा मुकब और ये तमाम जो दिया गया है अगर उसको हम हल करते जाएंगे तो हमें काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इससे मुतालिक जो नंबर सीरीज़ और इब्तिदाई जो सवालात हैं वो हल करने में हमें काफ़ी आसानी होगी GMAT पेपर में। तो हम एक मिसाल यहाँ पर शुरू करेंगे। 4 अदद लेंगे हम, तो यहाँ पर 4, तो 4 का मुरब्बा कितना है यहाँ पर 16। सिर्फ एक अदद लेकर के हम इसको हल करेंगे और 4 का जो मुकब है 4 4 16, 16 4 64। अब यहाँ पर n स्क्वायर माइनस n यानी मुरब्बा 16 है, 16 में से हमें 4 को निकालना है तो ये कितना होगा 12 आएगा। अब n स्क्वायर जमा n यानी मुरब्बे में उस अदद को जमा करना है तो 16 जमा 4 कितना हो जाएगा 20 होगा। तो अदद के मुरब्बे में उस अदद को जमा करना है। इसी तरह से यहाँ पर मुरब्बे में 1 को जमा करना है तो ये 17 होगा। मुरब्बे में अदद के मुरब्बे में 2 जमा करेंगे तो 18 होगा। अदद के मुरब्बे में 3 जमा करेंगे तो ये 19 होगा। इसी तरह से यहाँ पर अदद का मुकब है, तो मुकब हमारे पास कितना है 4 का मुकब 64 है, तो 64 जमा 1 कितना होगा ये 65 होगा। यहाँ पर मुकब में 64 में 2 मिलाएंगे तो ये कितना होगा 66 और मुकब में 3 को जमा करना है तो 64 जमा 3 कितना होगा 67 और इसी तरह से मुकब में क्या मिलाना है n मिलाना है, यानी अदद का मुकब 64 है और अदद कौन सा है 4, तो 64 में 4 मिलाएंगे तो ये 68 होगा। इसी तरह से मुकब में n को तफरीक करना है तो 64 किसका मुकब है 4 का, तो उसी अदद को यहाँ पर हम क्या करेंगे नफी करेंगे तो ये कितना होगा 60 होगा। इसी तरह से मुकब में से हमें 3 को नफी करेंगे तो 64 में से 3 जाने पर ये कितना होगा 61 होगा। नेक्स्ट मुकब में मुरब्बा मिलाना है, तो मुकब कितना है 64 और मुरब्बा कितना है 16, तो 64 में 16 मिलाएंगे तो 64 1 6 70 और ये कितना होगा ये 80 होगा। अदद का मुरब्बा और मुकब मिलाएंगे तो ये 80 होगा। इसी तरह से यहाँ पर मुकब में से मुरब्बे को नफी करना है n क्यूब माइनस n स्क्वायर, तो 64 में से अगर हम 16 निकालेंगे तो 64 में से 14 में से 6 जाने पर ये 8 और इसी तरह से 6 में से 2 जाने पर ये 4 48 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम तमाम जो अदाद दिए गए हैं उनको लेकर के प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से हम मुरब्बे में अदाद के मुरब्बे में मुख्तलिफ अदाद को जमा करते जाएंगे या नफ़ी करते जाएंगे या फिर अदाद के मुकब में मुख्तलिफ अदाद को जोड़ते जाएंगे या नफ़ी करते जाएंगे, तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम जब जो नंबर सीरीज़ और स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं GMAT के उनको हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो वहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं कौन सा नंबर क्या है मुरब्बा है, किसी अदद का मुरब्बा हो सकता है या किसी अदद का मुकब हो सकता है, मुरब्बे के करीब हो सकता है या मुकब के करीब हो सकता है। तो इस तरह से हमें बहुत आसानी होगी। अगर इस पूरी वर्कशीट को अगर हम हल करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी हेल्प होगी इस वर्कशीट से। तो ये वर्कशीट का लिंक भी क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप ये वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सबक था यहीं पर मुकम्मल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें,
اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوست و احباب میں، سہیلیوں میں، تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے استفادہ کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔